زمین اگر پتھر ہو تو بارش سے کیا ہوگی؟ زمین اگر پتھر ہو تو بارش سے کیا ہوگی؟ دل اگر سخت ہو تو تقاریر و بیانات و خطبہ سے کیا ہوگی؟ معزز سامعین و سامعات و حاضرین جمعہ، جملہ حمد و ثنا کی برائی مدح و توصیفہ اس پاک پروردگار عالم رب ذوالجلال کی لائق و زیبا، جس خالق ارض و سماء پاک پروردگار عالم نے ہم کو پہلی بار ڈاک بنگلہ سے ادھر یعنی اورنگ آباد کے جامع مسجد کے ممبر رسول پہ کچھ کہنے کو مزید آپ لوگوں کو سننے کی توفیق بخشی۔ باقی اللہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین مقتضی حال یعنی جب جیسا موقع ہوا اللہ رب العالمین انبیاء اکرام کو مبعوث کرتے گئے بھیجتے گئے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک ایسے وقت پہ مبعوث فرمایا، معجزات عطا کیا جس وقت جادوؤں کا دور تھا، چاروں اکناف و اطراف یعنی چاروں طرف جادوگر ہی جادوگر نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو، جو موسیٰ نبی کہتے ہیں، ان کو ایسا معجزہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا کہ سارے ساحرین، سارے جادوگر سربا سجود ہو گئے، سر خم کر لیے، سر جھکا ڈالے۔ اسی طرح عیسیٰ نبی کا نام سنے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے وقت پہ مبعوث فرمایا، معجزات عطا کیا جس وقت کبار اطباء یعنی بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے۔ عیسیٰ نبی کے زمانے میں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ کوئی اگر مادر زاد نبینا پیدا ہوتا، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا جس کو ادھر کی زبان میں کانا کہتے ہیں، کوئی اگر ماں کے پیٹ سے کانا پیدا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے اور دم کر دیتے، اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا، آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی۔ اتنا ہی نہیں، کوئی اگر مر بھی جاتا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر لایا جاتا، عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیر دیتا اور دم کر دیتے، اور اتنا کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، چلو کھڑے ہو جا، تو مردہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین مقتضی حال کے مطابق انبیاء اکرام کو مبعوث کرتے گئے، جن میں سے ہمارے آقا نبی سرور کائنات فخر دو جہاں رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین عبداللہ کے لفظ ذکر آمنہ کے نور نظر احمدی مصطفیٰ محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ صد درود کاملہ نازل جو آمین، اللہم صلی و بارک علیہ۔ عزیزان گرامی، میں آپ لوگوں کی مشکلات سمجھ پا رہا ہوں، پریشانیاں میں بھی سمجھ رہا ہوں، اور کچھ میری بھی پریشانیاں ہیں کہ میں بنگلہ زبان بول نہیں پا رہا ہوں۔ بلکہ آسان سے آسان کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگ بھی تھوڑا سا دماغ لگا کر سوچنے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، ہم آپ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ کوئی کچھ کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، غرض و غایت ہوتی ہے۔ چاہے موٹر سائیکل، ٹو ویلر، چاہے فور ویلر، چار چکا والی گاڑی خریدتے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی مکان خریدتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی زمین زائدات کھیتی باڑی خریدتے ہیں اس کا ایک
एक मकसद होता है। घर में खाना सालन चावल रोटी जो भी बनाते हैं उसका एक मकसद होता है। जूता चप्पल साड़ी खरीदते हैं उसका एक मकसद होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हम आपको पैदा किया, क्या इसका कोई मकसद नहीं? इसका भी एक मकसद है, अभी बताऊंगा। एक कहावत है कि इंसान की उम्र जब 55 से ज्यादा हो जाती है तो लोग यूं कहते हैं कि कब्रिस्तान के करीब है। तो बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, वो दादा या नाना नारियल का दरख्त लगाता है, पेड़ पौधे झाड़ लगाता है, गाछ लगाता है। तो लोग उससे कहते हैं, पोते नवासे कहते हैं, गांव वाले, इलाके वाले, पड़ोसी वाले कहते हैं ये नारियल का झाड़, पेड़ पौधे दरख्त जो लगा रहे हो इसमें तो 10 साल के बाद फल आएगा। तो बुजुर्ग, वो बूढ़ा, वो दादा या नाना ये जवाब देते हैं कि हम मर गए तो क्या हुआ, हमारी औलाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, नवासियां हैं, ये लोग खाएंगे। यानी इनका भी एक मकसद होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम आपको पैदा किया, क्या इसका मकसद नहीं? इसका भी मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान, जिन और इंसान का पैदा, तो हमने जिन्नात और इंसान को पैदा किया मेरी इबादत के लिए। मसला साबित हो गया कि अल्लाह ने पैदा किया। अब रहा सवाल, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी मखलूकात के अंदर जितनी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, 4 शक्ल है, 4 सूरत, खाकी, आबी, नूरी, नारी। तफसील का वक्त नहीं, कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। खाक का माना हुआ मिट्टी, मिट्टी से पैदा हम आप औलाद आदम जितने हैं सब। नंबर 2 आप यानी पानी, जो पानी का जानवर मछलियां पैदा हो गया। नंबर 3 नूर, नूर से पैदाइश, नूर से तखलीक फरिश्तों की। नंबर 4 नार, आग से पैदाइश जिन्नात की। चलिए और एक कदम आगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम के ना माँ है ना बाप है, तखलीक का सूरत एक हो गया। नंबर 2 माँ हव्वा अलैहिस्सलाम है, जो सही मुस्लिम की रिवायत आती है कि इन्नल मराता खुलिक़त मिन ज़िल, ये जो बाई पसली है, पंजरी है, इसी से तखलीक माँ हव्वा अलैहिस्सलाम की। तखलीक का सूरत तो अलग है लेकिन इनके भी माँ बाप नहीं। नंबर 3 ईसा अलैहिस्सलाम, माँ का नाम मरियम है, बाप नहीं। नंबर 4 और अंबिया किराम को ले लीजिए जिनके माँ बाप सारे मौजूद हैं। इसी तरह सूरह शुरा उठाएंगे, आयत नंबर 49 के अंदर, वहां में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 ही नक्शा खींचा। क्या कहा? यह बोले मैं यशा नासा। एक नंबर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको चाहता है सिर्फ बेटियां देता है। वो ये सोचता है कि इस बेटे के बतन में, इस बेटी के पेट में सिर्फ बेटियां निकल रही है, यानी इस कारखाने से सिर्फ बेटियां निकल रही है। शरीयत इस्लामिया में 4 तक परमिशन दिया है कि 4 तक तुम शादियां कर सकते हो। नानो नफ्के सारी चीजों की ताकत है, वो दूसरी शादी कर लेता है, 3 कर लेता है, 4 कर लेता है, लेकिन अल्लाह ऐसे मार दिया कि उनके वहां बेटियां ही बेटियां, यानी बेटियों का बाप, बेटियों का बाहर एक भी बेटा नहीं। नंबर 2 अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको चाहता है सिर्फ बेटे देता है। एक यहाँ सिर्फ बेटियां और एक यहाँ सिर्फ बेटी, बेटा ही बेटा। 2 हो गया। नंबर 3 अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है
दोनों देता है, बच्चे 7 बेटियां 1 बेटा, मिला जुला तो हो गया ना बेटा, या यूं समझिए 7 बेटे 1 बेटी, मिला जुला हो गया। नंबर 4, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको चाहता है बाल कर देता है, नए औलाद कर देता है, वो 1 के बजाय 4 शादियां कर लेता है, लेकिन उनके वहां कोई औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। इस सारे कारनामे करने वाले कौन? अल्लाह। अब रहा सवाल कि अल्लाह ने इतनी मखलूकात को पैदा किया, सबसे हसीन, सबसे जमील, सबसे खूबसूरत किसको बनाया? सवाल तो है ना, हैवानात, नबातात, जमादात, जितनी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर किसी को बनाया तो इंसान। अभी दलाल पेश करूंगा, ये वही इंसान जिसके बारे में रब्बे कायनात ने कहा, अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन। इंसानों, क्या मैं तुम्हें हकीर पानी से पैदा नहीं किया? जो पानी तुम्हारे कपड़े के अंदर, पैंट पजामे के अंदर लग जाता, लुंगी के अंदर लग जाता है, ढिलान हो जाता, एक्सपोज हो जाता, जिसको सुपुर्दोस कहते हैं, यानी नापाकी की हालत में, परहेज़ी के आलम में नमाज पढ़ाना तो दूर की बात, नमाज पढ़ना तो दूर की बात, मस्जिद में दाखिल होना तो दूर की बात। आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं कि नापाकी की हालत में, परहेज़ी के आलम में खाना खाना तो दूर की बात, चाय पीना, पानी पीना तक भी गवाह नहीं करता, जल्दी ना आए। अल्लाह ने कहा, मेरे बंदे, मैंने तुमको उसी से पैदा किया, और कहा यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्माहातिकुम खलक़न मिन बअदि खलक़िन फी ज़ुलुमातिस सलस। ए मेरे बंदे, मैंने तुझे 3 अंधेरों में पाला। एक माँ के पेट का अंधेरा, उसके अंदर एक रेहन है, बैग, झोला, थैली, उस जैसा उसका अंधेरा, उसके अंदर एक बारीक पर्दा जिसको झिल्ली कहते हैं, उस झिल्ली का अंधेरा। हे मेरे बंदे, मैंने तुझे 3 अंधेरों में पाला। मेरे बंदे सुन, तुम्हारी माँ का घर खाया कर रही थी, मंदिर अंदर हाथ बना रहा था, तुम्हारी माँ के लिए खाया कर रही थी, मंदिर अंदर हाथ बना रहा था, तुम्हारी माँ से अनार अंगूर खाया कर रही थी, मंदिर अंदर भेजा बना रहा था, तुम्हारी माँ साग सब्जियां, तरकारियां, चिकन, मटन, बिरयानी दबाया कर रही थी। ऐ मेरे बंदे सुन, मैं तुम्हें बनाने में लगा रहा था, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। ऐ मेरे बंदे, तुम्हारा रब और नस्ल का बनाने वाला मैं। ये हाथ कौन दे सकता, पैर कौन दे सकता, जुबान कौन दे सकता, और ये आँख कौन दे सकता, और इस दिल और दिमाग से जो फैसले करते हैं, ये चचा है या वालिद मोहतरम है, दादा है, नाना है, माँ है, बाने है, बीवी है, ये बेटी है, फूफी है, खाला है, यानी इस तरह फर्क करने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने कहा, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। हे मेरे बंदे, तुम्हारा रब और नस्ल का बनाने वाला मैं। इतना ही नहीं, सुन मेरे बंदे, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप इशा के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद आराम के खर्राटे ले रहे थे, आराम की नींद सो रहे थे। ऐ मेरे बंदे, और मैंने सो रहा था, मैं तुम्हें बनाने में लगा रहा था। ऐ मेरे बंदे सुन, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम निशात भी मौजूद न था, मैंने तुमको उसी से पैदा किया। हल अता अलल इंसानि हीनुन मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। ऐ इंसानों, क्या तुम पर एक ऐसा असर, एक ऐसा ज़माना, एक ऐसा वक्त ना गुज़रा कि खुद तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप भी लेना पसंद नहीं कर रहा था? मेरे बंदे, मैंने तुमको उसी से पैदा किया और सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। जी हाँ, वो 30वीं पारे के अंदर है। बहुत सारे लोग वो 3 ज़ैतून सूरा के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग सूरह तीन के नाम
اسم تفضیل کا صیغہ. اللہ رب العالمین نے سورج بنایا، کہیں بھی احسن اسم تفضیل کا صیغہ نہیں لایا. چاند بنائی اصل نہیں کا، آسمان بنائی اصل نہیں کا، زمین بنائی اصل نہیں کا، حیوانات نباتات جتنے چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا، کہیں بھی سوائے انسان کی اصل کا لفظ یوز استعمال کے باہر نہیں کیا. اگر کے باہر کیا تو صرف خاکی انسان کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، جس کی صورت بھی حسین ہو، سیرت بھی حسین ہو. خالق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تخلیق کا مقصد بھی حسین ہے. لیکن افسوس مسلمان ایگزامپل مثال کے طور پر سمجھانا بہت آ گیا ہے. آگے چلے آسن پیچھے کھڑے ہو. دیکھیں آپ نے ہمارے گھر عموماً کیا ہوتا ہے، شادی کے 2-3 سال بعد اللہ اولاد دے دیتا ہے. بیٹا بیٹی جو بھی ہو، لنگا لنگا جو بھی ہو، اللہ دے دیتا ہے. اب شادی کی 5 سال ہو گیا، آواز مت دیجیے، 5 سال ہو گیا کوئی اولاد نہیں. جیسی بات علاج معالجہ کرائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہے. 10 سال کے بعد اللہ نے اولاد دے دیا، بیٹا کے سن لیجیے، بیٹا دے دیا. بہت اچھا نام رکھنے عبداللہ عبدالجبار عبدالستار. بیٹا آپ کا 1 سال کا ہو گیا، آنکھ کی روشنی صحیح سلامت ہے، آنکھ کی روشنی صحیح سلامت ہے. 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہو گیا، آپ کی بچے کی آنکھ کی روشنی صحیح سلامت ہے، کوئی نقص نہیں. 21ویں سال جب آپ کی بچے کی عمر ہو گئی، اچانک بیٹا صبح کا ٹائم ہے، فجر کے ٹائم میں کہتا ہے امی تو کیا ہو بیٹے، بولے امی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہوں. ماں چلا کیا بیٹا، اسی دوران پتا آپ کو تو کیا ہو بیٹے، بولے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا بیوقوف ماں باپ نہیں ہے کہ اپنے بچے کا علاج نہیں کرائے گی. اورنگ آباد کے اندر علاج کروائیں، کہیں کاریگر نہ رہا. برہم کو لے کر گئے، کوئی کاریگر نہ رہا. کسی نے کہا کہ سنا ہوں، کیا کہا، سنا ہوں تمل ناڈو کے اندر بھیلور کے اندر آنکھ کے اچھے ڈاکٹر ہیں، فلاں کا بیٹا کیسا ہوا تھا، وہاں جانے کے بعد ٹھیک ہو گیا، بھلو ہو گیا. جیسے بات اگر غریب آدمی ہے تو چندہ عمدہ کر کے، اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو مال و دولت ہے کوئی بات نہیں. نہیں تو زمین جائیداد بیچ کر کے چلے گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، روبرو ہو گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. سر پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہنے لگے سر میں پچھم بنگال، مغربی بنگال، اورنگ آباد، دھلیان دربھنگا سے آیا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا میاں آنے جانے کا کرایہ تمہارا، کھانا پینا تمہارا، علاج فری. کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے، علاج فری میں، کوئی فیس نہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، اور میڈیسنس دوائی انجیکشنس کیپسولس جو بھی لگے گا فری میں دیا. ادھر سے تو لبینا ہو کر، اندھا ہو کر، کانا ہو کر کے گئے تھے، آپ ادھر سے آنکھ والا ہو کر اس طرح 20 سال 15 سال 10 سال پہلے دیکھ پا رہے تھے، اسی طرح ہو کر کے آ گئے. تو آنے کے ٹائم میں ڈاکٹر صاحب سے توصیت ہو گئی، محبت ہو گئی. کہا سر کبھی ہمارا مغربی بنگال، کبھی اورنگ آباد آنا ہو تو آئیے گا، میرا ایک ایڈریس ہے، یہ لے کر لیجیے. ڈاکٹر صاحب کو یہ کہہ کر چلے آئے. کسی بات پر گئے، کسی طرح ڈاکٹر صاحب اورنگ آباد پہنچ گئے. یہ بیچارے آٹو ٹیمپو چلانے والے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، مزدور آدمی تھے. مزدوری کر کے نماز وغیرہ پڑھ کے کھانا کھا کے آرام سے سوئے ہیں. ایڈریس کے مطابق ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، دروازے میں کھٹکھٹایا. ایک بار 2 بار 3 بار ہے کون رہا ہوں. جیسے ہی دروازہ کھولا جاتا ہے دیکھتے آئی یہ تو وہی ڈاکٹر صاحب جنہوں نے میرے آنکھ کا علاج کیے تھے. فوراً کہا سر کہاں سے آئے سر، کیسے آنا ہوا سر، کیا خدمت کر سکتا ہوں سر. 35 یعنی 24 گھنٹے آپ
अज़ीज़ान गिरामी, जरा सा सोचिए, अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है। आज बड़े अफसोस से करना पड़ता है कि आज मुसलमानों को जो तबाही, मुसलमानों की जो बर्बादी हो रही है, इससे पैसे ही नहीं हो रही है। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। औरंगाबाद कभी देखा भी नहीं था, भले हमारे आलम भाई हमारा दोस्त है, उनसे नाम सुना, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि आप लोग सुन चुके होंगे, या नहीं तो बहुत सारे मदारिस हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, इनसे भी पूछ लीजिए कि एक तरफ 313 सहाबाए किराम, कितने 313, सिर्फ 313, एक रिवायत में 317 का जिक्र है, लेकिन उतना सही नहीं है। हथियार कुछ भी नहीं, एक तरफ लश्करी तूफान बेशुमार हथियार लिए, सोचा मुसलमानों को धनिया चटनी जानते ना, इस तरह पीस डालेंगे। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह की नुसरत देखिए, अल्लाह की मदद देखिए कि वो 313 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की वजह से आज सारी दुनिया में इस्लाम फैला। कोई मुल्क बता दें आप लोगों में से कि फलां मुल्क के अंदर मुसलमान नहीं है, मुल्क तो छोड़िए, कोई स्टेट नहीं बता पाएंगे आप लोगों में से, कोई स्टेट तो छोड़िए, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई जिला, जिला जो कहते हैं जिला, कोई अजला के अंदर ऐसा आप लोग नहीं बता पाएंगे फलां जिले के अंदर एक अल्लाह का बंदा नहीं है, एक अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं। यानी 313 सहाबाए किराम की वजह से सारी दुनिया में इस्लाम फैला। और आज इतने मुसलमान रहने के बावजूद कभी इनकी माँ की इज्जत लूटी जाती है, बहन की इज्जत लूटी जाती है, बीवी की इज्जत लूटी जाती है, उनकी दुकानें लूटी जाती हैं, गाजा मोहर की तरह काना जा रहा है, चिड़े की तरह चिड़े जा रहे हैं, फिर भी मुसलमान बेबस हो चुके हैं। जबकि कुरान कहता है वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। एवं नवाब वाले सुन ले, हम झूठे हो सकते हैं, जलालुद्दीन अंसारी, आप औरंगाबाद वाले झूठे हो सकते हैं, पूरा मगरबी बंगाल वाले झूठे हो सकते हैं, लेकिन काबे के रब की कसम कुरान झूठा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उस कुरान ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु, ऐ मुसलमानों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ऐ मुसलमानों तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं, ऐ मुसलमानों तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह का रब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। आज चंद महीना पहले, चंद साल पहले एनआरसी और सी के बारे में कितने परेशान, कितने मुसलमानों का घर तोड़ दिया जा रहा है, इनके मसाजिद को शहीद कर दिया जा रहा है, फिर भी मुसलमान भी बस। कुरान कहता है घबराने की जरूरत नहीं, तो फिर परेशान क्यों है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? वला तहिनु वला तहज़नु, तुम्हें गमगीन परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन शर्त लगा दिया क्या? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन बनोगे, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की चाशनी, ईमान का मीठा ईमान का मादा ईमान का माखन जब तुम्हारे अंदर पाया जाएगा, तो तुम सारी चीजों में हुकूमत करोगे। आज मसाजिद में जगह नहीं हो रही है, बेचारे पीछे वाले बहुत तकलीफ से बैठे हुए हैं। आप देखिए जुम्मे के दिन मसाजिदें भर जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना उम्मीद तो जरूर करता हूँ कि फजर और असर में 3 सब होना भी मुश्किल हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त खत्म होना जा रहा है, मैं इनको सब बताने की कोशिश करूँगा। देखिए खास करके जो नमाजी हैं, आज गैर कौम, जिसको हम आप हिंदू कहते हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं, ये लोग आज जो है कितने आगे बढ़ चुके हैं जानते हैं? मेडिकल साइंस कर रही है। जो नमाज पढ़ते हैं ना वो भी सुने, और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो भी सुने। जो नमाज, जैसे अभी मैं वजू बनाया यहाँ नीचे, तो इससे साबित हुआ कि पानी की टैंकी ऊपर में है ना, इसीलिए नल नीचे है, पानी का टोटी खोलेंगे, नल खोलेंगे तो भर भरा के पानी गिरेगा। वही पानी का जो टैंकी है उसके ऊपर या उसी सीधा में लगा दिए तो नल, पाइप खोलिए, पानी नहीं गिरेगा, है ना। तो इंसान के अंदर में जो खून है ना, खून, तो ये
ये खून की टैंकी यहाँ है, तो मैं पोस्टमार्टम करते हुए भी देखा यहाँ है। तो यहाँ से इधर खून आने जाने में परेशानी नहीं होती है, यहाँ से ऊपर जाने में परेशानी होती है। इसीलिए लोग सर दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहे हैं। वही इंसान जब नमाज पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सजदा करेगा, और जब सजदा करेगा ये सर नीचे होगा और ये खून की टैंकी ऊपर होगा, और यहाँ से खून सारी जगहों में बेहोश करेगा और इसी तरह बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मेरे पास, आज मुसलमानों के अंदर जरा सोचिए, अभी मोबाइल का दौर चला है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अगर 5 बार ठीक करवाए मोबाइल, घर लाते हैं, 2-4 मिनट बात करते हैं, नहीं करते हैं, फिर खराब, लास्ट में क्या करते हैं, मोबाइल को ऐसी जगह में फेंक देते हैं जहां लोग थूकना भी पसंद नहीं करता है ना। लेकिन हाँ, अल्लाह गफूर एक नाम है, तुम्हें एक नाम रहीम भी है। हम अल्लाह की जमीन में चलते हैं, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं, अल्लाह के हवा का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह का दिया हुआ पानी पीते हैं, और उस अल्लाह को छोड़कर औरों को याद करते हैं। तो बताइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आपके साथ क्या बर्ताव करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए शायर ने कहा, ना समझोगे तो मिल जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिल जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अज़ीज़ान गिरामी, कम से कम कब्र के बारे में सोचिए, अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया।